Good morning dear students. Hello and welcome to my YouTube channel. Friends, in today's class we have taken a next topic in speaking, that is have or has. Dear students, whenever you want to speak, let me tell you one important thing, that you don't have to worry anything, only you need to start a simple sentence and simple structure through which you can start your speaking. In the same way, today I have taken one topic, that is have or has. See, what I do in this topic, I can tell some simple things using have or has. How many things I have, I can express by using have or has, right? So let's start this topic, have or has. Friends, I have written already the structure of have or has. You see, there are four types of structure that I have taken: simple, negative, interrogative or WH word. See, what we do while making simple sentence, this is the structure: subject, then have or has, then object. This is the simple format. Let me tell you one thing, friends, that while speaking we don't need to understand or we don't need to learn the structure basically, but one thing is there, for writing only I have shown you the structure so that easily you can understand what I need to practice. So I have mentioned over here this structure, then in very next slide we will practice only, we will not worry about these structures. इन स्ट्रक्चर्स को अभी हमने केवल समझने के लिए लिखा है, आगे हम लोग इन स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको सोचना नहीं है, इनको ध्यान नहीं रखना है, केवल आपको मैंने इनको देखने के लिए, आपको यहाँ बताने के लिए लिख दिया। तो देखिए, पहले समझ लीजिए हैव और हैज़ का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। जो भी चीज़ें, वॉट एवर थिंग्स आई हैव एंड दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, जो भी चीज़ें मेरे पास हैं, सपोज मेरे पास एक पेन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो कुछ भी है वो मैं बताना चाहता हूँ, टू एक्सप्रेस द थिंग्स दैट आई हैव, उसके लिए मेरे पास जो ऑप्शन है वो है हैव और हैज़ का। आई हैव टू ऑप्शंस, इधर हैव और हैज़, एंड दिस इज़ द सिंपल स्ट्रक्चर। देन आई सी नेगेटिव. What we do while making negative, when we make negative sentence we use helping verb. So here in the simple sentence we don't have any helping verb, right? यहाँ हमारे पास कोई helping verb नहीं है simple sentences में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लियर कर लूँ कि ये जो have और has है वो helping verb नहीं है। देखिए, एक have जो होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सहायक क्रिया, जो कि हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो वो पता कैसी चलेगी, जहाँ पे व्हेन आई यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सपोज आई राइट आई हैव टेकन, राइट, सो हियर इफ यू सी वी हैव टेकन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हियर, एंड विद द वर्ब आई सी have is mentioned over there, so I can understand because of third form and have is there, here have is the helping verb, क्योंकि यहाँ third form भी है और have लिखा है, तो ये वाला जो have है वो क्या है, यहाँ पे helping verb है, ठीक है। दूसरा, एक आपको पता है have एक verb भी होती है, ठीक है ना, and if I tell you the all the forms of verb, that is have, had or had. So see, one have is verb, one have is helping verb, and this is different have or has that keeps the meaning of this. ये अलग have और has है जिसका मीनिंग क्या होगा, पास में है, जो चीज़ें आप बताना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, have और has है जिसका मीनिंग पास में है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, इन द सिंपल सेंटेंस वी डोंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब, राइट, यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वाइल मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस, व्हेन वी पुट नॉट, what is the rule of making negative, we always make negative sentence with the help of helping verb. So what I need to use helping verb. So what I have used here, do or does. जब भी आप नेगेटिव बनाते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, do or does, या मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी पड़ती है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, do और does, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे और इस पे क्या डिफरेंस हो गया, केवल हमने हेल्पिंग वर्ब do और does लाई, नॉट से नेगेटिव बनाया, ये वाला हैव है। अब देखिए, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, हियर आई हैव यूज्ड हैव और हैज़
एंड हियर इफ़ यू सी ओनली हैव इज़ यूज्ड। पहले वाले में हमने हैव और हैज़ का इस्तेमाल किया, वेयर एज यहाँ पे आप जब नेगेटिव बना रहे हो तो आपके पास केवल क्या है, हैव है। सिमिलरली इफ़ वी मेक नेगेटिव सेंटेंस, हम लोग नेगेटिव में क्या करते हैं, वी टेक हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, राइट। So what I did here, I took this helping verb before the subject, do or does, then subject, then have and object। तो इंटरोगेटिव में हमने क्या किया, इंटरोगेटिव में हमने सब्जेक्ट के पहले क्या रख लिया, हेल्पिंग वर्ब रख लिया। तो यहाँ पे ध्यान दें, सिंपल वाले में आपके पास हैव और हैज़ है, निगेटिव में भी हैव है, इंटरोगेटिव में भी हैव है और WH वर्ड में। तो आपको ध्यान रखना है, जो हैव और हैज़ की चेकिंग करना है, हैव और हैज़ इज चेक्ड व्हेन we make only simple sentences. In rest of the format, whether it is negative, interrogative or WH word, we don't use has, we only go with have। केवल have का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, has का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते। तो ये तो फॉर्मेट की बात थी, इससे आपका ज़्यादा लेना देना नहीं है। कब, जब आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो स्पीकिंग, तब, ठीक। नाउ we'll see have or has, in which subject we will use have or in which subject has will be used. We know with I, we, you, they and plural we use have, with he, she, it, name and singular we use has। Fine। I, we, you, they के साथ हम क्या करते हैं, have का इस्तेमाल करते हैं, he, she, it, name के साथ क्या करते हैं, has का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, now what you need to do, you need to remember only one thing that we will see in the next slide. You will have to practice like that. See, in the same way that you have seen in the structure, subject, then have or has, then object. In the same way I have written here, but it is written in the form of practice. You will not remember the structure। यहाँ आपको स्ट्रक्चर ध्यान नहीं रखना है, आपको केवल क्या करना है, इस फॉर्मेट में करनी है प्रैक्टिस। सो यू विल प्रैक्टिस लाइक दिस, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, people have। In place of plural I have written one example of plural, so I have taken here people। he has, she has, it has। In place of name I have taken one name, that is Rahul for example, and in place of singular I have taken here teacher। So what you need to practice, you have to practice like this, I have, we have, they have, people have, I have, you have, we have, they have, Rahul has, he has, she has, it has, Rahul has, teacher has। So you have to practice regularly in this format। आपको क्या करना है, I have, इसकी प्रैक्टिस आपके अपने ब्रेन को ट्रेन कर लेना है कि जो चीज़ आप बताना चाहते हो तो आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। I have, you have, we have, they have, he has, she has, it has, Rahul has। फाइन। तो आप क्या करेंगे, कितनी प्रैक्टिस आपको करनी है, आई हैव, आई हैव, आई हैव। अब आपको क्या करना है, वह एक वस्तु जो आपके पास है उसको आप उसके साथ क्या करेंगे, केवल ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे मैंने ये आपको एक ऑब्जेक्ट यहाँ ऐड करके रखा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक तो करनी है प्रैक्टिस, जो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ऑलरेडी, और आप जो चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो सपोज लेट अस स्टार्ट विद दिस, आई हैव टाइम, आई हैव मनी, आई हैव अ मोबाइल। सपोज व्हेन काउंटेबल थिंग्स आर देयर आई कैन यूज़ ए और मैनी, इट डिपेंड्स, है ना। जब आपका ये जैसे मनी है, टाइम है, ये अनकाउंटेबल है तो हम यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक मोबाइल हो सकता है, ज़्यादा मोबाइल हो सकता है, तो आप बता सकते हो कि मेरे पास एक मोबाइल है या ज़्यादा मोबाइल है, तो ए भी लिख सकते हो, मैनी भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं ए से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई हैव टाइम, आई हैव मनी, आई हैव मोबाइल, आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक, I have a problem, I have a friend, I have a pen, I have a book, I have a laptop. So whatever you have, you can change only this word and automatically your sentence will be completed. Like that you can do practice properly.
suppose you have to practice with this you, then you have time, you have money, you have a mobile, you have a car, you have a bike, you have a problem, you have a friend, you have a pen, you have a book, you have a laptop. Similarly, if you want to practice with this he, then you will practice like this. He has time, he has money, he has a mobile, he has a car, he has a bike, he has a problem, he has a friend, he has a pen, he has a book, he has a laptop. तो आपके पास, मेरे पास जो है I have this, आपके पास है you have that. ठीक है, तो आपके पास जो है आप उसको प्रैक्टिस करके रखो कि आई हैव, जो तुम्हारे पास है यू हैव, जो उनके पास है दे हैव, ही हैज़, शी हैज़. और आप इस एक चीज़ को क्या कर सकते हो, चेंज करके आपके बहुत सारे आप सेंटेंसेस बना सकते हो. अब यहीं आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे बस सिंपल क्या करिए, कुछ और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो. आप पेंसिल लिख लीजिए, नोटबुक लिख लीजिए, ठीक है, न्यूज़पेपर लिख लीजिए, कुछ भी जो आपको चीज़ें आपको दिन भर में इस्तेमाल करनी है. ठीक है, टेलीविज़न है, रेडियो है, वॉच है, जो भी चीज़ें हैं आप क्या कर सकते हो, केवल आपको चेंज क्या करना है, ये चेंज करना है और आप बहुत सारे ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हो. अभी आपके पास एक है तो ए से बोलेंगे और आपको बोलना है आई हैव मैनी बाइक्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स, आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव मैनी लैपटॉप्स. तो ज़्यादा हैं तो आप मैनी का प्रयोग कर सकते हो. ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस तरीके से अपनी कॉपी में ये वाला फॉर्मेट बना लेना है कॉमन. और जितनी भी चीज़ें आप लिख सकते हो, only change this thing and automatically you will make many more sentences. ठीक है, सो ये आपका था सिंपल फॉर्मेट जो मेरे पास है और वो मैं बताना चाहता हूँ. इस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ. नाउ आई विल सी हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस एंड दैट विल बी सीन इन द नेक्स्ट स्लाइड नंबर 3. नाउ यू सी, I have made already this slide in the negative format. Here if you see, I have used here do not have. If you remember the structure that I have shown in the first slide, I told you that in the negative sentence only we use have, we do not use has, right? In simple sentence only we use have or has. While making negative, interrogative or WH word, we don't need to check have or has, only have is used with all the formats. आपको केवल नेगेटिव सिंपल वाले फॉर्मेट में ध्यान रखना है कि have आएगा कि has. अब जब आप नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पे आपको कहीं पर भी have has का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल और केवल have का इस्तेमाल करना. ठीक है, तो बहरहाल मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये आपको पता है आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, डोंट लगता है, और ही शी इट के साथ क्या लगता है, डज लगता है. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डज नॉट हैव. ठीक है, क्या आ जाएगा, डज नॉट हैव. तो ये डू नॉट हैव है, ये डज नॉट हैव है. ये डू, चूँकि आई वी यू दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है, ही शीट के साथ क्या लगता है, डज लगता है. तो ये तो आपका डू और डज अलग रहेगा, लेकिन हैव यहाँ भी रहेगा, हैव यहाँ भी रहेगा. अब आपको क्या करना है, अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर द नेगेटिव सेंटेंस एंड दैट विल बी डन इन दिस वे, लाइक आई डोंट हैव, राइट. वाइल मेकिंग सिंपल सेंटेंस आई डिड, आई हैव, नाउ आई डोंट हैव, you don't have, we don't have, they don't have, he doesn't have, she doesn't have, Rahul doesn't have, I don't have, I have this car, I don't have a car, I have a car, I don't have a car, you have time, you don't have time, they have money, they don't have money. So you will practice like this, I don't have, you don't have, we don't have, they don't have, he doesn't have, she doesn't have, it doesn't have, Rahul doesn't have, right? So you will practice up to here, I don't have, I don't have, and now you will put one more word that you don't have, you will paste over there. जो नहीं है उसको आपको बोलना मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको कितना प्रैक्टिस होना चाहिए, I don't have time, पैसा नहीं है, I don't have money, बैट नहीं है, I don't have bat, बॉल नहीं है, I don't have ball, right? तो आप इन्हीं चीज़ों के लिए आप किसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये आप जितना चाहें वो चेंज करें और अलग अलग सेंटेंस आप बना सकते हो. ठीक है, मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ. I don't have time,
आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मोबाइल, आई डोंट हैव कार, या आप एनी का भी प्रयोग जहाँ अप्रोप्रिएट है वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के लिए हम लोग एनी का प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आई डोंट हैव एनी टाइम, आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैव एनी मोबाइल, आई डोंट हैव एनी कार, आई डोंट हैव एनी बाइक, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, आई डोंट हैव एनी पेन, आई डोंट हैव एनी बुक, आई डोंट हैव एनी लैपटॉप, ठीक है। इसी तरीके से आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ही से आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? ही डजंट हैव टाइम, ही डजंट हैव मनी, ही डजंट हैव मोबाइल, he doesn't have car, he doesn't have bike, he doesn't have problem, he doesn't have friend, he doesn't have pen, he doesn't have book, he doesn't have laptop. So what I have, I will express by using I have, and what I don't have, I will tell I don't have. जो आपके पास है आप बताओगे आई हैव दिस थिंग, जो नहीं है आई डोंट हैव दिस थिंग, ठीक है। तो ये तो था आपका नेगेटिव फॉर्मेट। सिमिलरली आप जैसे आई के साथ है, वी के साथ है, यू के साथ है, आप अलग अलग अपने घर में लाउडली आप क्या कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आसानी से बहुत सारी सेंटेंस, जितने सेंटेंस चाहें उतने बना सकते हैं। आपको बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नाउ विल मूव अप टू नेक्स्ट फॉर्मेट, दैट इज़ इंट्रोगेटिव, राइट। Now we see interrogative format. What we do while making interrogative sentence, we take our helping verb before subject. So if you see what I have done here, I have taken helping verb from here and I have taken before subject. Subject के पहले अभी तक मैं क्या कर रहा था, I do not have, अब मैंने do को क्या किया, आगे किया, does को क्या किया, आगे किया। Again we have to practice, do I have, do we have, do they have, do you have, does he have, does he have, does Rahul have, does teacher have, do you have। तो मोस्टली आप क्या करते हो, बहुत सारे काम सामने वाले से बहुत ज़्यादा पूछते हो, ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लें। do you have, do you have, do you have, do you have time, do you have mobile, do you have any problem, do you have any question, do you have any suggestion, right? So like that you can practice. So I practice with this, do you have, do you have, do you have, do I have, do we have, does he have, does she have, does he have, does he have। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स टेक विथ do you have, do you have time, do you have money, do you have mobile, do you have car, do you have bike, do you have problem, do you have friend, do you have pen, do you have book, do you have laptop। Before this you can also use here any, do you have any time, do you have any money, right। तो ये आपका तरीका है कि जब आप क्या कर सकते हो, इंटरोगेटिव में किसी से पूछते हो कि क्या आपके पास ये है, इस फॉर्मेट को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस तरीके से आप यहाँ तक आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। देखिए आपको चेंज केवल ये करना, राइट, और आप प्रैक्टिस कितना करेंगे, आई हैव, आई डोंट हैव, डू आई हैव, कैसे प्रैक्टिस करना है, चारों फॉर्मेट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे, आई हैव, आई डोंट हैव, डू आई हैव, वाई डू हैव। अभी हम चौथा फॉर्मेट वाई डू हैव का जो है प्रैक्टिस करेंगे जब अभी हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं यू हैव, यू डोंट हैव, डू यू हैव, व्हेन डू यू हैव, राइट। ये चारों फॉर्मेट को आप क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं अगले फॉर्मेट की तरफ, जो कि आपका कौन सा है, WH word. So let's see how to practice WH word. Again, if you see what we do while making WH word, we take WH word before helping verbs. So firstly we write WH word, then helping verb, then subject, then object, right? In the same way I have taken here this slide. So what I need to practice here, why do I have, when do I have, where do I have, how do I have, what do I have। तो अब why का मतलब आपको पता होता, क्यों, मेरे पास ये क्यों है, when मेरे पास कब है, कहाँ है, कैसे है और क्या है। अभी तक आप पूछ रहे थे कि क्या आपके पास है, अब आपसे पूछेंगे आपके पास क्यों है, आपके पास कैसे है, आपके पास कितना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, WH वर्ड, व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, होम, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, ये आपके WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको अभी आपने बताया आई हैव टाइम और आई डोंट हैव टाइम, पूछा डू आई हैव टाइम और व्हाई डू आई हैव टाइम, मेरे पास टाइम क्यों है। You have money,
you don't have money, do you have money, and why do you have money. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो. So friends, this is very very simple and useful class. You can learn it very simply and you can make many sentences by using this have or has. Thank you very much. Jai Hind.